بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي خلق كل شيء وهو حسن الخالقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم وحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منہن فاتوہن اجورہن فریضۃ فلا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما صدق اللہ العظیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قابل احترام ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العظیم آپ سب کا جو ہے قرآن خلاصے میں آج 5ویں پارے کا انشاءاللہ العظیم خلاصہ پیش ہوگا، اس میں آپ سب کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ 5واں پارہ جو ہے یہ سورہ نساء سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ نساء تقریباً آیت نمبر 24 سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 147 پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس پارے کا۔ تو گویا پورا یہ پارہ جو ہے 5واں پارہ سورہ نساء پر مشتمل ہے۔ سورہ نساء جو ہے اس کے سلسلے میں ابتدائی گفتگو کل آ چکی تھی۔ اگر اس کو میں نے جیسے میری پہلے پارے کا خلاصہ پیش ہوا تھا، اس میں نے کہا تھا کہ قرآن جو ہے یہ پورا اس میں ایک نظم ہے، اور پورے نظم کے ساتھ جو ہے اگر دیکھا جائے تو ساری صورتیں، ساری آیات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ تو اس لحاظ سے سورہ نساء جو ہے یہ گویا سورہ آل عمران جو اس سے پہلے کی سورہ ہے اس کا ایک طریقے سے یہ تتمہ ہے اور تکملہ ہے اس کا۔ آپ دیکھیں گے تو سورہ آل عمران کا جس موضوع پر خاتمہ ہوتا ہے وہیں سے سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا جو آیت نمبر 200 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو وہاں تقوی کی بات کہی گئی تھی، اور اس کے لیے جو ہے آپس میں کس طرح جو ہے مستعدی کے ساتھ جو ہے آپس میں مل جل کر اور پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک اجتماعیت کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اسی پر جو ہے آپ دیکھیں گے تو اس اگلی سورہ جو سورہ نساء ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ تو یہاں بھی اللہ کے تقوی کی بات کی گئی ہے، اور پھر اس چیز کا حوالہ دیا گیا ہے کہ آگے جو تم سے اے مسلمانوں زندگی مطلوب ہے وہ ثابت قدمی کی زندگی مطلوب ہے، اور وہ ثابت قدمی کی زندگی جو ہے بغیر مضبوط جماعتی زندگی کے ممکن نہیں ہے۔ اور جو جماعتی زندگی جو ہے اسی وقت مضبوط ہوتی ہے میرے دوستوں جب ہمارا خاندان، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مختلف فتنوں سے محفوظ ہو۔ تو اس فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی ضروری ہدایات جو ہے آپ کو ابتدا میں ملیں گی۔ تو گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورہ میں وہ تمام چیزیں بیان ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے جو ایک اسلامی معاشرے کو مضبوط بنانے والی ہیں، اور ایک مستحکم ریاست جو مدینے کی وجود میں آنی تھی، یا آئندہ جو ہے جن بنیادوں پر اسلامی ریاست وجود میں آئے گی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے بہترین اصول اس سورہ میں دیے ہیں۔ اس سورہ کے آغاز ہی میں جو ہے بلکہ یہ کہیے کہ اس سورہ کا نام بھی دیکھیں تو سورہ نساء ہے، تو گویا آغاز ہی میں اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اسلام کا عقیدہ ایک ایسی چیز پر استوار ہے جہاں مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ رب العزت ہے، اس لحاظ سے کہ آدم اور حوا سے ان کی تخلیق ہوئی ہے، اور ان سب کا رشتہ اللہ رب العزت سے جڑتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ خدا اور رحم یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے کے درمیان مشترک چیزیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے رحم کو اپنے عرش سے جوڑ کے رکھا ہے، اور یہ وارننگ دی ہے کہ جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا میں اس کو ختم کر دوں گا، اور جو اس کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا۔ تو اس لیے جو ہے رشتے کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ کس طرح ایک خاندان کی مضبوطی جو ہے اس کے لیے رشتوں کو نبھانا اور رشتوں کے پاسداری کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر آپ کو دیکھیں کل یہ بات آ چکی تھی کہ اس میں ابتدائی میں جو ہے
इस जो माशरे के कमज़ोर अनासिर होते हैं, जिसमें ख़ास तौर से यतीम है, औरतें हैं, उनके हुकूक को जो है इस्लाम ने मुतय्यन कर दिया। इस सूरह के आगाज़ ही में उसको कह दिया गया और उसको अदा करने पर भरपूर तरीके से जोर दिया गया है। फिर उसी निस्बत से आगे जो है आप देखेंगे कि वरासत की तकसीम से मुताल्लिक बिल्कुल वाज़ेह क़वानीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को दिए हैं। और ख़ास तौर से जो फ़राइज़ हैं आप देखेंगे तो फ़राइज़ जो टोटल 16 फ़राइज़ हैं उसमें 12 तकरीबन औरतें हैं, सिर्फ 4 जो है मर्द हैं। तो इस लिहाज से गोया इस्लाम ने इस बात को इंश्योर किया कि अब तक औरतों पर जो जुल्म हुआ इस्लाम इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसमें जो सबसे बड़ा जो है जुल्म होता था कि औरतों को, अव्वल तो जब हम जाहिली माशरे का मुताला करते हैं उस ज़माने के, तो औरतों को एक नहूसत की अलामत समझा जाता था। औरतों को ज़िंदा दर गौर किया जाता था। उसके पीछे जो मकासद थे उसके मकासद यही थे कि ये दूसरों के घर जाएंगी और एक आर का सबब बनेंगी। फिर उसके अलावा वरासत उनको नहीं दी जाती थी कि ये हमारी असल जायदाद को दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल कर देंगी। तो इस्लाम ने इन सारी चीज़ों के भरम को तोड़ते हुए बिल्कुल जो है उनके वरासत को मुतय्यन कर दिया, उनके हुकूक को मुतय्यन कर दिया। फिर साथ साथ जो है इसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें मुसलमानों के जो बाहमी हुकूक एक दूसरे पर फ़राइज़ हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोर दिया है। और ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनमें उलुल अम्र होंगे, जो रियासत तश्कील पाएगी, तो उसमें उलुल अम्र की अताअत पर सबको मुज्तमा रहने की ताकीद की गई है। और यही दरअसल इस्लामी, यही वो चीज़ है जिस पर इस्लामी हुकूमत की बुनियाद है। फिर आगे जो है आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीम मैं तफसील में भी आऊँगा, लेकिन मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँ कि उसके बाद आप देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत तफसील से जो है मुनाफ़िकीन का जो है मुनाफिकीन का तज़किरा किया है। मुनाफिकीन की कलई अगर कहा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खोल के रख दी है, जो इस्लामी माशरे के अंदर एक नासूर की हैसियत रखते थे। और मुसलमानों के अंदर जो उनके दुश्मन थे, वो अंदर रहते हुए जो उनके दुश्मन यानी यहूद व नसारा थे, उनके एक तरीके से एजेंट के तौर पर काम करते थे। अब मैं आपके सामने जो है तफसीलन जो है जो ये पारा है जो आयत नंबर 24 से शुरू होता है, तो वहाँ से 147 में जो मज़ामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किए हैं और जिनको हम सबको जानना ज़रूरी है, उसके सिलसिले में मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता चलूँ कि आप देखें आयत नंबर जो है 22 से अगर इसको लें तो सबसे पहली चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जो है, अव्वल तो जो है निकाह के जो शराइत हैं, यानी निकाह के ज़रिए जो है माशरे को बदकारी से बचाना, इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जोर देते हुए ख़ास तौर से एक चीज़, एक रस्म जो जाहिलियत में आम थी, उस जाहिलियत के रस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म करते हुए कहा कि औरत जो है ये कोई माल वरासत नहीं है कि बाप के इंतकाल के बाद जो उसकी मनकूहा है वो बेटे के वरासत में आ जाए, बल्कि औरत जो है वो एक उसको उसकी एक हैसियत है, एक माशरे में एक मकाम है। तो इस लिहाज से ये जो अब तक जाहिलियत की रस्म चली आ रही थी कि बड़ा बेटा जो है बाप की जो सौतेली माँ होती थी वो उसके निकाह में ले लेता था, ये अब कतन जो है इस पर पाबंदी लगाई जाती है और इसको ममनू हराम करार दे दिया गया। क्योंकि इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो वो रिश्ते जो महरम कहलाते हैं, जिनसे शादियां हराम हैं, उसका भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे पहले जो इस पारे के आगाज़ से पहले सूरह निसा में उसका तफसीली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र कर दिया। हत्ता कि रज़ाई जो रिश्ता होता है, रज़ात से जो रिश्ते साबित होते हैं, उसकी भी तफसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें बयान कर दी। अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चीज़ का जिक्र किया इस पारे में कि औरतों को अगर आप, यानी जो मर्द और औरत के रिश्ते जो है वो आपस में मुअद्दत और एतमाद पर जो है बहाल होते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक शख्स अब एक औरत को अगर छोड़ना चाहे, उससे निकाह से अलग करना चाहे, तो खामखा जो है उसके माल या उसको जो चीज़ें दी हैं उसको ऐंठने की कोशिश करे और उस पर तहमत लगाए, उस पर बहतान लगाए। आज हम सब ये चीज़ें अपने माशरे में देखते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ताकीद की कि जो मुत्तक़ीन होते हैं वो इन सब हरकतों से बचते हैं। फिर साथ साथ जो है ये भी बताया गया कि माशरे में जो है जो एक फ़ितरी इंसान की ख्वाहिश होती है, उसको पूरा करने के लिए, उसकी तस्कीन के लिए जो है निकाह को इस्लाम ने आम किया है और निकाह को आसान बनाकर जो है उसको आम किया,
ताकि माशरे को बदकारी और बेहयाई से बचाया जा सके। और साथ साथ जो है ये भी अर्ज़ किया गया कि जो लोग जो है मुतहम्मिल नहीं है निकाह के लिए आज़ाद औरतों से, तो वो अपने जो बादियाँ हैं उनको अपने निकाह में लें, और उनको जो है इस तरह जो है बादियों का जो एक 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 उस ज़माने में सिस्टम चल रहा था, उसका भी धीरे धीरे इसके ज़रिए ख़ात्मा किया गया। और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि जो लौडियाँ, चूँकि आम तौर से जो है आप देखेंगे दूसरे आगे सूरतों में आएगा कि किस तरह जो है वहाँ माशरे में इनको बदकारी पर मजबूर किया जाता था, तो अब अगर निकाह में आ जाने के बाद ऐसी लौंडियाँ जो है बदकारी करती हैं तो उनके लिए जो है ताज़ीर का ज़ाब्ता मुतय्यन किया गया। फिर साथ साथ जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को आगाह किया, जो आगे आयत नंबर 26 आप देखें, युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। तो मुसलमानों को अल्लाह ने आगाह किया तमाम अहकामात व हिदायत देने के बाद कि अब जो है तुम्हारी बेहतरी यही है कि तुम अमल साले करो, और जो अब तक तुम्हारे अंदर कमियां थी, जो कोताहियाँ हो चुकी थी, उसमें तौबा करो और इस्लाह की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने साले बंदों को हमेशा पसंद करता है, और इस लिहाज से जो अहकाम और हिदायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए हैं, उनको कहा गया कि इंसान की जो तबई कमज़ोरी होती है उसको पेश नज़र रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम अहकामात दिए हैं। तो इसलिए उसमें जो है कभी भी जो है ये जो मुनाफिकीन का टोला है या दुश्मनों का टोला है, वो तुम्हें हमेशा जो है वरगलाने की कोशिश करेगा, और जो पाकीज़ा राह पर इस्लाम ले जाना चाहता है उससे हटाने की कोशिश करेगा, और तो उनसे आगाह किया गया कि तुम उससे बच के रहना। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इस बात की तरफ कहा कि एक दूसरे का माल जो है हम नाजायज़ तरीके से खाने की कोशिश न करें, क्योंकि अब ये सूरह निसा को, जैसे मैंने कहा कि एक बेहतरीन इस्लामी रियासत का क़याम किन उसूलों पर कायम होता है उसका जिक्र आपको मिलेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन। तो जो आपस में कमज़ोर का माल हड़प लेते थे, इस तरह की चीज़ें, उसको कहा गया कि तुम इस रास्ते से बचो, और जुल्म उद्वान के रास्ते से पर जो लोग चलते हैं वो गुनाहगार लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहगार लोगों को पसंद नहीं करता। फिर आगे आप देखेंगे 32 नंबर की आयत से कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों और मर्दों में जो तफदील और जो फ़र्क कायम किया है उसकी वजाहत की गई है कि शरीयत में औरत और मर्दों के लिए जो हदूद मुतय्यन है वो किन बुनियादों पर वो हदूद मुतय्यन किए गए हैं। ज़िम्मेदारी और जो तबाई जो फितरी तौर से इंसान जो जिसके अंदर जो है जिस उनसुर में कमज़ोरी है उसका पास लिहाज करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको मुतय्यन किया है। तो इस लिहाज से आगे आप देखेंगे कि जो ख़ानदान है और जो माशरा है उसकी सरबराही और उसकी क़व्वामियत को मर्दों के हवाले किया गया। अर्रिजाल क़व्वामून अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बादहुम अला बाद। अब इससे बाद जो है मुसलमानों के यहाँ भी जो मुफस्सिरीन है या जुहला हैं वो कहते हैं कि जो लोग ये बात करते हैं कि मर्द औरत के हुकूक की बराबरी की बात करते हैं, वो जो है इस आयत की क्या दलील देंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो आयत है वो ज़िम्मेदारी को कौन ज़्यादा उठाने के मुतहम्मिल है उसका लिहाज करते हुए जो कफ़ालती ज़िम्मेदारियाँ उस लिहाज से मुसलमानों को मर्दों को क़व्वामियत दी गई है। ऐसा नहीं है कि माशरे में जो है सारे हुकूक मर्दों को हासिल होंगे, औरतें जो है उन हुकूक से महरूम होंगी। तो ये जो है दरअसल ये नुक्ता गलत है। फिर साथ साथ जो है औरतों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे तंबीह की है कि चूँकि जो ज़्यादातर जो है ख़ानदान की खानगी की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो मर्द उठाता है, तो इस लिहाज से औरतें सरकशी के रास्ते से बचें। अब अगर सरकशी महसूस करता है मर्द, तो उसे जो है कहा गया कि इन इख्तलाफात को किस तरह दूर होना चाहिए, उसकी भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तदबीर बताई है। उसकी तफसील हम देख सकते हैं कि उसकी तफसील ये है कि पहले हम बिस्तर से अलग करें, फिर उसको मामूली तरीके से तंबीह करें, फिर जो है कुछ और सख्ती करने के लिए जो है उसे हल्की उससे जो है उसकी सरजनिश करें, फिर उसके बाद जो है कोई हकम मुतय्यन करें। ये पूरी तफसील आपके सामने आएगी। फिर आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खुदा है
यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वालिदैन हैं, अक़रबा हैं, यतामा हैं, मसाकीन हैं, पड़ोसी हैं, इन सब के जो है हुकूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन किया। जैसे आगे कहा वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना व बिज़िल क़ुरबा वल यतामा। तो ये पूरे जो है तकरीबन यहाँ आपको 12 लोगों के हुकूक का जिक्र आपको मिलेगा, जिनको कहा गया कि हम जो है इसको पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें जो है अदा करना है। और फिर आगे फरमाया गया, ये भी नसीहत कर दी गई कि इस नसीहत के बावजूद भी जो लोग इस पर अमल नहीं करते तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। फिर आगे आप देखेंगे तो आयत नंबर जो है 41 जो है, आयत नंबर 41 जो है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताज्जुब का जिक्र करते हुए फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीदन, कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तरीके से इस चीज़ का तज़किरा किया है कि ये तमाम जो अब तुमको जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, इन जिम्मेदारियों के नतीजे में तुम्हारे ऊपर जो बोझ है वो ये है कि तुम दुनिया के सामने जो है इस अमल की गवाही दो। अब इस सिलसिले में बहुत मशहूर रवायत आप सब जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत पर पहुँचते हैं तो हज़रत मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो तिलावत कर रहे होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगते हैं, और जब वो सर उठाकर देखते हैं तो उदारो कतार जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू रवा थे। और ये क्यों था? ये वो एहसास था मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी डाला है, खुदा न खास्ता मैं इस जिम्मेदारी को अदा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास है तो हमको और ज़्यादा इसका एहसास होना चाहिए मेरे दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से हम पर जो जिम्मेदारी आयद की है, तो हम जो है किस हद तक जो है उस हक़ को अदा कर रहे हैं। फिर साथ साथ जो है हम आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हक़ होता है वो क्या है? नमाज। उस नमाज से मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुफ्तगू की है। नमाज की फ़र्ज़ियत और ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं जिक्र हुई हैं, बल्कि नमाज के जो आदाब होंगे, जो शराइत होंगे, हमें किन मुफ़्सिदात से नमाज में बचना है उसका जिक्र किया गया। तो यहाँ एक ख़ास उस वक्त का रवाज था कि लोग जो है पी कर भी आते थे और जो है नमाज उससे मुतासिर होती थी दूसरों की भी। तो इन मुफ़्सिदात से का इज़ाला किस तरह होना चाहिए उस पर तंबीह की गई है। हम और आपके लिए इसमें यह है कि हम भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो कितना खुशू व खुजू होता है, ये चीज़ असल मकसूद है। जो चीज़ें जो आदाब बताए गए हैं वो इसी खुशू खुजू को हासिल करने के लिए। फिर आगे की आयत में आपको देखेंगे तो यहूदियों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या इस्लाम के तई जो उनकी शरारतें थीं, उन बाज़ शरारतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र करते हुए जो उसके नताइज हो सकते थे उस नताइज से आगाह किया गया। आयत नंबर 47 में देखें, या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन नतमिस वजूहन फनरुद्दुहा अला अदबारिहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें एक तरीके से उनको कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया कि नाकामी बहरहाल तुम्हारी होगी, तुम इस नबी के ख़िलाफ़ जितनी भी चेहरे दस्तियाँ करनी है कर लो। फिर आगे हम देखते हैं तो गोया एक तरीके से यहूद जो अपनी बरतरी के झूठे दावे करते थे और मुसलमानों को गिराने की जो कोशिश कर रहे थे, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बल्कि कहीं कहीं तो वो मुशरिकीन को भी मुसलमानों पर तरजीह देते थे, तो इस तरदीद को बातिल करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ये तो उनके हसद का नतीजा है। और हसद जो है वो चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मती पर हसद करते थे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसलिए हसद करते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब से, जो अदीम किताब है, जो हिकमत इसके नतीजे में हमें मिलती है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें महरूम कर दिया। और इस किताब और हिकमत के नतीजे में जो अदीम हुकूमत आगे मिलने वाली थी मदीना की शक्ल में, तो यहूदी चूँकि बिल्कुल जो है एक जले भुने थे, तो इसलिए उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे आगाह किया, उनकी पूरी कलई को यहाँ पर खोला है। फिर आगे हम देखते हैं तो आयत नंबर जो है 59 और 58 और 59, ये जो है इन्नल लज़ीना यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तो यहाँ पर मुसलमानों को नसीहत की गई कि अब अहले किताब जो है इस लायक नहीं है कि शरीयत इस्लामिया का बोझ अमानत वो उठा पाएँ, इसलिए अब उनसे छीन कर ये जिम्मेदारी हम तुम्हें देने वाले हैं। तो जैसे ही तुम्हें ये जिम्मेदारी मिले तो तुम्हें किन राहों पर चलना है, कैसे चलना है, उसकी तंबीह की गई कि ठीक ठीक तुम इस जिम्मेदारी के हक़ को अदा करना, तुम हर वक्त अदल व क़िस्त को कायम करना, और अल्लाह और उसके रसूल जो है उलुल अम्र की अताअत पर हमेशा गामजन रहना, और इस अमानत का बराबर जो है हक़ अदा करने की कोशिश करना। अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात होते हैं तो तुम उस वक्त अल्लाह और रसूल की तरफ जो है उसको मामले को पलटाना,
اور ہمیشہ جو ہے نزا جو ہے وہ اپنے اولو الامر کی بات مان کر جو ہے ادا کرنا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں میرے دوستوں، تقریباً 10 آیتیں آگے آپ کو ملیں گی، آیت نمبر 60 سے 70 تک، وقت بہت مختصر ہے۔ تو آپ کو اس میں جو ہے منافقین کو ملامت کر کے اللہ رب العزت نے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بجائے اس کے کہ اس پر مجتمع ہوتے، جو ان کی دشمنیاں تھیں اور اس دشمنیوں میں جو وہ چیرہ دستیاں کر رہے تھے، اس کی پوری اللہ رب العزت نے قلعی کھودتے ہوئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا اور مومنین کو بھی کہا گیا کہ تمہیں ہرگز جو ہے ان منافقین کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے آگے کی جو 5 آیت ہیں اس میں مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ اب تک جو لوگ دارالکفر میں مسلمان رہ گئے ہیں، تم ان مظلوموں کی حمایت کے لیے تمہیں کیسے اٹھنا ہے، تمہیں جہاد کے لیے جو ہے کیسے تیار ہونا ہے، اور کیسے جو ہے آگے جو خطرات ہیں ان کو مول لینے کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو تقریباً 80 کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں منافقین کی جو دو رخ پنا تھا، یعنی پہلے تو وہ جہاد کے لیے اجازت چاہتے تھے، اب جب جہاد آ گیا اور کہا جا رہا ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کھڑے ہو، تو وہ لوگ جو ہے منافقت پر اتر آئے ہیں اور پھر جو ہے طرح طرح کے ہیلوں کے ساتھ جو ہے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اصل تمہارے دشمن یہی ہیں، اور پھر اس بات کو مسلمانوں کو کہا گیا کہ موت سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، موت چاہے تم لاکھ ہیلے کر لو، میدان جہاد میں بھی موت سے تم بچ سکتے ہو اور بستر میں بھی تمہیں موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے کبھی بھی اپنی اور خاص طور سے اس وقت جو کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے تھے، آگے پیچھے آل عمران آپ کے سامنے گزر چکی ہے، اس میں جنگ احد کا ذکر ہوا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے تدبیری کو وہ نتیجہ قرار دے رہے تھے مسلمانوں کی ان حالات کا۔ تو اس پر تنبیہ کی گئی کہ بہرحال تمہیں ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے اور انہی کی اطاعت کے ذریعے تم آگے کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر مزید جو ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ منافقین کی تفصیل سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی تمام روش کا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں ان کا رویہ تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بیان کرتے ہوئے ان کی شرارتوں کو بتلایا کہ اصل خطرہ یہ تمہارے لیے اصل ہیں، تم ان کو پہچانو اور اس روش سے بچنے کی ان کو بھی تنبیہ کی گئی اور مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ تمہارے درمیان جو ارباب اہل وقت ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں، وہ برابر جو ہے ایسی ان کی طرف سے جو شرارتیں اٹھتی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار رہیں۔ پھر آگے جو ہے آگے بھی مزید جو ہے منافقین ہی کا ذکر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں تو آگے پھر جو ہے جب 91 سے ہم دیکھتے ہیں تو جو لوگ اب تک دارالکفر میں رہ گئے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان میں جو مالو اپنے گھر بار کی اور ان سب چیزوں کی جو حرص تھی اس کو لے کر، تو اس پر متنبہ کیا گیا کہ یہ نفاق کی علامت ہے۔ اب جب ایک دارالاسلام قائم ہو گیا ہے، اب ایک اسٹیٹ قائم ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس اسٹیٹ کو مضبوط کرنا ہے، اس لیے جو ہے انہیں جو ہے اس طرف جو ہے رخ کرنا چاہیے، اس طرف جو ہے ہجرت کرنا چاہیے۔ تو اس کی طرف جو ہے پھر آگے میرے خیال سے دارالحرب سے متعلق جو ہے بہت سے مضامین کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کے جان و مال کا احترام جو ہے، اس سے متعلق کچھ قوانین کو اللہ رب العزت نے، کچھ ہجرت اور جہاد سے متعلق جو ہے قوانین کا ذکر کیا ہے، اس کی تاکید کی ہے کہ کفر کے ماحول سے نکل کر اسلامی معاشرے میں ہم کیسے آئیں جہاں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اور مسلمان جو وہاں آلریڈی موجود ہیں ان کو کس طرح ہم جو ہے طاقت پہنچا سکیں۔ پھر آخر میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہیں ہر وقت اب جو ہے مدینہ اس خطرے میں ہے کہ تم کو ہر وقت جو ہے مستعد رہنا ہے، حتیٰ کہ خطرے کی حالت میں نماز کا طریقہ بھی انہی آیات میں آپ کو ملے گا کہ کس طرح جو ہے تم کو ہمیشہ مستعد رہنا ہے۔ یہی وہ وقت تھا میرے دوستوں جب سیرت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل راتوں کو سوتے تھے تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے، اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کاش کوئی ہوتا جو میرا پہرا دیتا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً جو ہے لبیک کہتے ہیں اور آپ کے گھر پر باہر پہرا دیتے ہیں۔ یہی پیریڈ تھا۔ پھر آگے آپ دیکھیں گے تو تقریباً ان مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو کھلے عام منافقین کے معاملے میں مداہنت برتتے تھے اور حتیٰ کہ بعض اوقات مدافعت کرتے تھے۔ آج بھی اس طرح کی چہرے دستیاں ہو رہی ہیں، منافقت ہمارے درمیان ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کو جو ہے ان کی دفاع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ تمہیں جو ہے ہرگز جو ہے ان کے ساتھ کوئی مداہنت نہیں کرنی ہے۔
اب आखिर में जो है आप देखेंगे तो फिर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतीमों उन और फिर माएँ और जो औरतें उनके मुताल्लिक जो हुकूक है उसका फिर से जो बात सवालात पैदा हो रहे थे माशरे में, उनसे मुताल्लिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब देते हुए फिर इस पारे का अख्ताम इस पर होता है कि मुसलमानों को पूरी सख्ती से इस बात की ताकीद की गई है कि तुमको जो हुक्म दिया जा रहा है उसको बेचूचरा तुम उस पर अमल करो और उससे ज़र्रा बराबर कोई राह फरार इख्तियार करने की कोशिश न करो। मुनाफिकीन की जो कुफ्र से दोस्ती है वो पूरी शिद्दत के साथ उनसे कहा गया कि इनसे तुम ऐलान बरात करो, इनसे तुम इजहार बेदारी करो, और तंबीह की गई कि मुनाफिकीन और कुफ़ार दोनों का ठिकाना जहन्नम है और दोनों का ठिकाना दुनिया में भी रुसवाई है। तो ये जो है इस पर जो है इस पारे का इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें जो अहकामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको दिए हैं उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।